السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بلدی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کے ادخال کا عمل مکمل، آخری دن مراکز پر امیدواروں کی کثیر تعداد۔ یاقوت پورہ، چار مینار، کاروان، چندرائن گٹا، ملک پیٹ، جوبلی ہلز اور سکندرآباد کے مجلسی امیدواروں کے پرچے بھی داخل۔ آبپاشی پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی کی وجوہات پر تفصیلی رپورٹ تیار کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ملک بھر میں پلس پولیو مہم، ریاست بھر میں 27,000 مراکز، 18 اور 19 جنوری تک مہم جاری۔ اور ٹپا چبودرا میں حقہ سینٹرز پر پولیس کے دھاوے، شرائط کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، 120 نوجوان زیر حراست۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کارپوریشن کے انتخابات کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل اتوار کے دن شام 3 بجے اختتام کو پہنچا۔ 100 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والی TRS جماعت بھی مکمل 150 ڈویژنوں پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنے میں ناکام رہی۔ TRS پارٹی نے 4 فہرستیں جاری کرتے ہوئے جملہ 143 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا، جبکہ پرچے نامزدگی داخل کرنے کا وقت ختم ہونے کے بعد TRS نے 7 ڈویژنز نریٹ مٹ، قطب اللہ پور، چلکا نگر، اٹک مٹ، بیگم بازار، کواڑی گوڑا، رام چندر پورم کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ قومی جماعت کانگریس کی حالت بھی ایسی ہی رہی، جس نے پارٹی کے داخلی اختلافات سے بچنے کے لیے 2 فہرستیں جاری کرتے ہوئے صرف 94 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ گاندھی بھون میں ٹکٹوں کے خواہش مندوں کی امکانی احتجاج سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے پولیس پیکٹ بھی تعینات کی گئی تھی، تاہم گاندھی بھون میں کوئی بھی قائد موجود نہیں تھا۔ ٹکٹ کے خواہش مند افراد نے بتایا کہ پارٹی کی جانب سے ہر ڈویژن سے پرچے نامزدگی داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جن کو ٹکٹ دینا ہوگا ان کو آخر میں بی فارم دیا جائے گا۔ اسی دوران رنگا ڈٹی کے قائدین نے اتم کمار ریڈی کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے۔ بی جے پی تلگو دیشم اتحاد بھی ایسی صورتحال سے دوچار نظر آیا۔ ہفتے کی رات تک دونوں جماعتوں میں نشستوں کی تقسیم کو لے کر رساکشی کے بعد تلگو دیشم نے 87 نشستوں پر اور بی جے پی نے 63 ڈویژن سے مقابلہ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ تلگو دیشم نے 87 کے من جملہ 81 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ بی جے پی کی جانب سے کوئی فہرست جاری نہیں کی گئی۔ قائدین نے بتایا کہ بی جے پی کے جو امیدوار ہیں ان کو پر اطلاع دے دی گئی۔ کانگریس کے علاوہ بی جے پی تلگو دیشم اتحاد کی جانب سے پرچے نامزدگی داخل کرنے والے امیدواروں کو ہنوز ان کے مقابلے کے تعلق سے تجسس برقرار ہے، کیونکہ جب تک پارٹی کی جانب سے بی فارم نہیں دیا جائے گا تب تک وہ پارٹی کے امیدوار نہیں کہلائیں گے۔ 31 جنوری کو واضح ہو جائے گا کہ کون مقابلہ کر رہا ہے اور کون نہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کمشنر بی جناردھن ریڈی نے بتایا کہ بلدیہ انتخابات کے لیے 2,969 نامزدگیاں وصول ہوئی ہیں، جن میں TRS 698، کانگریس 501، تلگو دیشم 506، بی جے پی 308، MIM 61 اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آخری دن جملہ 1,704 نامزدگیاں داخل کی گئی ہیں۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگائے گئے کٹ آؤٹس، بینرز، پوسٹرز جملہ 1,51,000 سے زائد نکال دیے گئے ہیں۔ کمشنر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ پارٹی کی جانب سے بی فارم داخل کرنے والے امیدوار کو ہی پارٹی امیدوار قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 18 جنوری کو پرچوں کی جانچ ہوگی، 21 نومبر کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ دوسری طرف پرچے نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن ہونے کی وجہ سے مختلف ریٹرننگ مراکز پر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ TRS، کانگریس، بی جے پی، تلگو دیشم اور دیگر جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدواروں نے اپنی نامزدگیاں داخل کی۔ 18 فروری کو پرچوں کی جانچ ہوگی،
21 तारीख को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने 5 असेंबली हल्के जात याकुतपुरा, चार मीनार, कारवान, चंद्रायन गुट्टा, सिकंदराबाद और जुबली हिल्स के मुख्तलिफ डिवीज़नों से अपनी अपनी नामजदगियाँ दाखिल की। संतोष नगर से मुजफ्फर हुसैन, रैन बाज़ार से वाजिद अली ख़ान, दबीरपुरा से रियाज अफंदी, छावनी से मुर्तज़ा अली, अकबर बाग से मिनहाजुद्दीन, कुरमागोड़ा से डॉक्टर समीना, तालाब चिंचलम से नसरीन सुल्ताना, पत्थरगट्टी से महमूद कादरी, बगलपुरा से अमतुल अलीम, शालीबंडा से मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, रियासत नगर से सलीम बेग, वेंगलराव नगर से शाम मदीराज और बोराबंडा से नरसिंह राव, सोमाजीगुड़ा डिवीज़न से देवी, एरागड्डा डिवीज़न से शाहीन बेगम, भहुआ नगर से शबाना बेगम, भगलपुर से अकील अहमद और मौलाली से रहमतुन्निसा नाजिद जान और दीगर ने अपने पर्चे नामजदगियाँ दाखिल किए। उम्मीदवारों को जुलूस की शक्ल में ले जाया गया, जहां इन्होंने मुताल्लिका अरकान असेंबली के साथ नामजदगियों के अतकाल का अमल मुकम्मल किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हम बोराबंडा एमएम पार्टी की तरफ से आज नॉमिनेशन डाले हुए हैं हमारा सरदार साहब के आर्डर पर। अभी बोराबंडे में इससे पहले हम सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम हमारे को दिए सीट, हम अच्छा मेजॉरिटी से जीते और काम भी अच्छे करें, डेवलपमेंट्स भी करें। अभी भी हमारा जीता है तो और जितने ज़्यादा डेवलपमेंट करके बताएंगे बोल के एमएम के पार्टी की तरफ से पूरों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रागड्डे के अवाम, माइनॉरिटी, एससी, बीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके मेरे को इलेक्ट करते रागड्डे से बोल के मैं उनका उम्मीद करता हूं उनके ऊपर, और इससे पहले भी मेरे को इलेक्ट करे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी वो रागड्डे के अवाम मेरे को इलेक्ट करती बोल के मैं उनका शुक्रिया। एमएम पार्टी से लड़ रहे हमारा असाउद्दीन अकबरुद्दीन को तोहफा देंगे, ऐसा भी जीत के लाएंगे, सब मिल के लाए अच्छा तोहफा देंगे उनको, भारी मेजॉरिटी से हम जीत के लाएंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह ताला उस काबिल बनाया। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे शालीमंडा डिवीज़न से टिकट दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं आवाम की रात दिन खिदमत करूँगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो भी काम होते हैं मैं बखूबी अंजाम देने की कोशिश करूँगा, आवाम के दरमियान में रहूँगा। नहीं इंशाअल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम जमात के साथ है और जमात के साथ रहेगी। बड़ा करम है सरकार मदीना के सदक़े में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहरबानी के नतीजे में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत नगर डिवीज़न का तीसरी मरतबा उम्मीदवार बन रहा हूँ। और मैं हल्के की आवाम का और मेरे साथी रुफ़ा इब्तदाई के सदर मुतमदीन और मेरे साथियों का भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन तमाम के इत्तेहाद से मैं इस बार भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मुझे हल्के की आवाम पर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि मैं भारी अक्सरियत से मुंतखब होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को एक तोहफ़ा दूँगा और इस हल्के से एक अजीम कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिलाऊँगा। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हल्का असेंबली याकुतपुरा, चार मीनार व मलकपेट की इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुनों का इजलास रुकन असेंबली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान के दफ्तर वाक़ वाल्टा होटल मगरपुरा पर मुनक़िद हुआ।
जिसमें मुमताज़ अहमद खान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बलदी उम्मीदवारों का तारुफ करवाया। इन्होंने मजलिसी ज़िम्मेदारों और मुहिब्बान मजलिस के अलावा अवाम से दरख्वास्त की कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी के फ़ैसलों को बाखुशी तस्लीम करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। मुमताज़ अहमद खान ने नौजवानों से कहा कि वो ख़ुद को उम्मीदवार समझें। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुखालिफिन हमारी मताए अजीज़ जमात मजलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए साजिशें कर रही हैं, लिहाजा हमको पहले से ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मजलिसी कारकुनों व मुहिब्बान मजलिस ने मुमताज़ अहमद खान को तयक़ुन दिया कि वो साजिशी अनासिर के जाल में नहीं आएंगे और मजलिस की कामयाबी के लिए हमेशा की तरह पुरजोश तरीके से काम किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती आबपाशी प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने के बाद ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली क्यों नहीं की जा रही है, इसकी वजूहात पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। कैंप ऑफिस पर मुनक़िदा जायज़े इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को बताया कि प्रोजेक्ट के डिज़ाइन की तब्दीली से होने वाले फ़ायदे और नुकसानात का अहाता किया जाए ताकि आंध्रा हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को नुकसान पहुँचाने वाले फ़ैसलों से आवाम को वाकिफ़ करवाया जा सके। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि कृष्णा और गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले नए प्रोजेक्ट्स और ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ौरन टेंडर्स तलब करें। वज़ीर आला ने बताया कि खम्मम के राजीव सागर और इंदिरा सागर के आबपाशी प्रोजेक्टों का रीडिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। इन प्रोजेक्ट्सों के लिए भी टेंडर्स तलब किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि महकूमा आबपाशी को मुस्तहकम करने के लिए आइंदा मालियाती साल से 25,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर स्कीमों के ज़रिए मज़ीद 5,000 करोड़ रुपये भी आबपाशी पर खर्च करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स, आंगनवाड़ी मराकज़, प्राइम सेंटर्स, सरकारी स्कूल्स में पोलियो खुराक पिलाने के इंतजाम किए गए थे। 18 और 19 जनवरी को अमला घर घर पहुंचेगा और बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएगा। 20 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में पल्स पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम रहेगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रियासत भर में 27,000 पल्स पोलियो मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने रंगारेड्डी ज़िले मणिकोंडा मंडल में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी मौजूद थे। हैदराबाद में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने बच्चों को खुराक पिलाई। इस मुहिम के दौरान अजीम तर बलदिया हैदराबाद में करीब 10 लाख बच्चों को ये खुराक पिलाई जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में स्विट्ज़रलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर टाइटल जीतने पर हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को मुबारकबाद पेश की है। इन्होंने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर 11वां टाइटल और 106 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड कायम किया और नंबर 1 जोड़ी होने का एजाज़ भी हासिल किया, जिस पर वज़ीर आला ने सानिया मिर्ज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि वो इसी तरह कामयाबियों का सिलसिला जारी रखते हुए रियासत का नाम ऊंचा करेंगी। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुफ्त स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। इस सेमाही तरबियती प्रोग्राम में उम्मीदवारों को वेब डिज़ाइनिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल सेल्स और सेलिंग स्किल्स की तरबियत दी जाएगी। ग्रेजुएट उम्मीदवारों की उम्र 18 और 26 साल के दरमियान होनी चाहिए। तफसीलात के लिए हज हाउस नामपल्ली में अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के दफ्तर पर रब्त पैदा किया जा सकता है। टप्पा चबुद्रा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने हुक्का सेंटरों और ब्लेट्स पार्लर पर धावे करते हुए 21 नौजवानों को हिरासत में ले लिया और हुक्का सेंटर्स के मालिकीन को वार्निंग दी कि अगर वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में हुक्का सेंटर्स पर धावे किए। पुलिस ने 51 हुक्का सेंटर्स पर रात देर गए ये धावे डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव की निगरानी में किए।
पुलिस ने 120 नौजवान लड़के और लड़कियों को हिरासत में ले लिया और 13 हुक्का सेंटर्स को मोहरबंद कर दिया। इन्होंने कहा कि ये हुक्का सेंटर्स कम उम्र लड़के और लड़कियों को भी हुक्का पीने की लत में मुब्तला कर रहे थे और बाज़ हुक्का सेंटर्स दीगर शराइत को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन हुक्का सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बलदी इंतखाबात के लिए नामजदगियों के इत्काल का अमल मुकम्मल, आखिरी दिन मराकिज़ पर उम्मीदवारों की कसीर तादाद। याकुतपुरा, चारमीनार, कारवान, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, जुबली हिल्स और सिकंदराबाद के मजलिसी उम्मीदवारों के पर्चे भी दाखिल। आबपाशी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली की वजूहात पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। मुल्क भर में पल्स पोलियो मुहिम, रियासत भर में 27,000 मराकिज़, 18 और 19 जनवरी तक मुहिम जारी। और टप्पा चबूतरा में हुक्का सेंटर्स पर पुलिस के धावे, शराइत की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां, 120 नौजवान जेर हिरासत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।